Today, as I told you, is a very, very, very important day. Why is it a very important day? A very important thing because we are going to start with a chapter called as residential status. अगर हम ये chapter देखते हैं तो this chapter is very simple, not that difficult, okay, till now. पर अब तक इस साल इसमें कई major amendments आए हैं, due to which this chapter becomes one of the most important chapters from the exam point of view. Okay, now I would want to first take a quick revision of what we have learned till now. Now, what we have learned till now, the tax calculations, the applicability of rebate, the calculation of surcharge, marginal relief, cess, okay, all of these things are very, very, very important because these would be taught to you only at this level. Further, as you move ahead towards the professional level, nobody is going to teach you all these things once again. Okay? Yes. So now, my dear students, हमने क्या देखा? We began with charging section 4 of Income Tax Act. Charging section 4 of Income Tax Act ने हमको बताया कि every person is liable to pay income tax. Okay? Every person, मतलब हर इंसान इनकम टैक्स पे करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF, AOP, BOI, HAP, firm, LLB, local authority, excluding central government and state government and all kinds of artificial juridical person, AJPs. Okay, all people will pay इनकम टैक्स. ओके, मतलब टैक्स ऑन इनकम. इनकम मतलब क्या? जो कुछ भी आप इनकम पहले अर्न करोगे, ऑल दीज इनकम्स विल बी इंक्लूडेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट. इस पे हमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. ओके, यस. अब टैक्स पे करना पड़ेगा तो इसके लिए रेट्स होने चाहिए. रेट्स दिए जाते हैं इनकम टैक्स के इन एवरी बजट. वाई एवरी बजट? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया है और हमको क्या होता है, in keeping into mind the fluctuation rates, inflation rates, keeping into mind the changing governments, as I told you in the last lecture, right? So बजट ऐसा बजट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर. हर साल उसमें इनकम टैक्स के रेट्स, स्लैब्स अवेलेबल होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सारे के सारे पर्सन्स को, ऑल पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू ऑल काइंड और सेम काइंड्स ऑफ टैक्सेस? Are all kinds of persons subject to same kinds of rates? No. Individual, HUF, AOP, BOI, firm, company, local authority, cooperative society, all of these are subject to different kinds of rates. If we see rates are of two kinds: flat rates, slab rates. Flat rates are applicable to partnership firm, local authority and company. बाकी सब की सब are subject to slab rates. Okay? Yes. What is the meaning of slab rates? Slab rates मतलब there is an exemption limit. मतलब अगर आपकी इनकम बेसिकली अगर आप कंसिडर करते हो कि इन केस ऑफ HUF, अगर आपकी इनकम अप टू 2,50,000 है, मतलब अगर आपने 2,50,000 रुपए ही कमाए हैं, उसके ऊपर आपने इनकम कमाया नहीं है, इन दैट केस व्हाट डज चार्जिंग सेक्शन 4 सेज? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज 2,50,000. 2,50,000 तक आप पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होगा, आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पर अगर आपका इनकम 2,50,000 से ऊपर हुआ, इन दैट केस यू विल हैव टू पे income tax. Okay, yes. So what are the slab rates? Come on everyone, let's make a quick revision. It's a very, very, very important chapter which will never be taught to you again. Okay, जब आप अगले लेवल पे जाओगे तो ये अज्यूम करेंगे कि आपने जो भी एग्जीक्यूटिव में सीखा है वो अच्छे से सीखा है. So in case of individual, everyone, in case of individual, there are two categories. Individual may be a resident, may be a non-resident. If a particular individual is a resident, my dear students, if a particular individual is resident, in that case what happens? Come on, अगर resident होगा तो अपने को next criteria देखना पड़ता है कि उसका age क्या है. If his age is up to 59 years, 0 to 59 years, slab 1 is applicable. 60 to 79 years, that is a senior citizen, slab 2 is applicable. 80 years and above, slab 3 is applicable. Okay, my dear students, जिन्होंने भी पहले के lectures देखा नहीं है, do not get demotivated. Rather, I am giving you a method कि आपको किस प्रकार से सोचना है. जब आप उस chapter को पढ़ोगे and उस chapter को खत्म करोगे, तो what should be the point of view, in which way should you revise that particular chapter? हमने ample examples किए हैं, ample homework दिया है, इसलिए chapter 1 के lectures अच्छे से सुनने के बाद I am sure you would be able to 100% correctly find out the tax liability of each and every kind of persons. Okay, yes. तो चलो चलते हैं. क्या देखा हमने? Okay, yes. Now slab 1,
हमने क्या देखा, स्लैब वन इज व्हाट, इन केस ऑफ इंडिविजुअल 0 to 2,50,000, in that case if your income is 0 to 2,50,000, 0% tax rate. If your income is 2,50,000 to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, and above 10 lakh, 30%. Then if you fall into slab 2, that is if you are a senior citizen. If you are a senior citizen, in that case, if your income is up to, that is 0 to 3 lakhs, you have 0% टैक्स. मतलब वहाँ पे 50,000 से आपका क्या हुआ है, एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ा दिया गया है बिकॉज यू आर अ सीनियर सिटीजन. 3 lakh to 5 lakh, 5%. 5 lakh to 10 lakh, 20%. More than 10 lakhs, 30%. If you are a super senior citizen, okay, third category, if your age is 80 years or above, okay, अब ये 60 years, 80 years, अगर आप पूरे साल में एक दिन भी 80 साल के हुए, राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल में आपका बर्थडे है और इस साल आप 80 ईयर्स के होने वाले हो, देन क्या बोला गया है, एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर अगर आप 80 ईयर्स और अबव रहे, इन दैट केस यू बिकम अ सुपर सीनियर सिटीजन एंड यू कैन गेट द बेनिफिट. उसका बेनिफिट क्या है, उनके लिए एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख है. मतलब 0 to 5 lakh 0% टैक्स, 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh 30% tax would be applicable. Okay, in case of individual. Okay, अब come on, recall. What are the steps of computation of tax liability? Tax on income, less rebate, फिर जो बैलेंस आता है उसमें एड सरचार्ज, फिर जो टैक्स प्लस सरचार्ज आता है उसमें से लेस मार्जिनल रिलीफ, और फिर जो मार्जिनल रिलीफ लेस करने के बाद अमाउंट आता है उसमें हम क्या करते हैं, सेस ऐड करते हैं एट द रेट ऑफ 4%. ओके, तो हमने टैक्स कैसे कंप्यूट करना, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल देखा. इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, what is the slab rate applicable? Only slab 1 is applicable. Income 0 to 2,50,000, 0%. 2,50,000 to 5 lakh, 5%. 5 lakh to 10 lakh, 20%, and above 10 lakh, 30%. ओके, यहाँ पे आपका एज चाहे कुछ भी हो, नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ स्लैब 1 इज एप्लीकेबल. आपको स्लैब 2 और स्लैब 3 का बेनिफिट नहीं मिलेगा. वाई? बिकॉज यू आर अ नॉन रेसिडेंट. क्लियर? ओके, फिर टैक्स ऑन इनकम होने के बाद उसमें से लेस क्या होता है, रीबेट. रीबेट किसको अवेलेबल? व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रीबेट? रीबेट इज अवेलेबल ओनली टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल. ओनली टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल. आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. देन यू गेट अ रीबेट ऑफ एक्चुअल टैक्स और 12,500, whichever is lower. ये 12,500 क्यों लिया, इसका भी मैंने लॉजिक आपको बताया है उस क्लास में जिस क्लास में मैंने रिपीट पढ़ाया है. गेटिंग इट? ओके, यस, लेट्स मूव अहेड फर्दर. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, देन रीबेट लेस किया. रीबेट लेस करने के बाद जो फिगर आता है उसमें क्या करते हैं, यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर आई गो अहेड. इन केस ऑफ रीबेट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, in which case if he is earning long term capital gain under section 112A. okay, what is long term capital gain, what is section 112A, मैं बताऊंगी जब सही वक्त आएगा. right things at the right time. okay, जब सही वक्त आएगा I'll tell you. not only this my dear students, I have also showed you how to make the best use of your calculators. हम अपने कैलकुलेटर्स पे कैसे फास्ट क्विकली सॉल्व कर सकते हैं. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ओके, यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने आई हैव नॉट फोकस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन बट रादर ऑन क्विकर कैलकुलेशंस. व्हाई? I have tried to make you used to the calculators, how to make the use of the memory techniques. Why is this important? Because my dear students, हमारा MCQ का पेपर है. Okay, and in this MCQ paper, saving time is the most important point. The more and more you try to save time, the more and more you're going to score marks. Okay, yes. Time is what? Time is money to the people, but here to us time means marks. okay, yes, so we have to be very quick. हमको इतना प्रैक्टिस करना है कि we get very used to calculators. okay, yes, before I go ahead with surcharge, I want to tell you one thing my dear students. एक आध दिन में आपके MCQs भी अपलोड हो जाएंगे चैप्टर 1 के. तो you are required कि आप चैप्टर 1 के जैसे ही लेक्चर्स आपके खत्म हो जाए, ओके, तो आप पहले वो MCQs सॉल्व करो. ओके, सी लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा स्ट्रैटेजी में यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है. क्यों स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है? एग्जाम्स आर नेक्स्ट डोर, राइट. हमारा अब तक पढ़ाई जो हुआ है वो तो अच्छे से हुआ है. इसके आगे हम जो पढ़ाई करने वाले हैं, मार्क माय वर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे हम जो पढ़ाई करने वाले हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करने वाले हैं. मतलब क्या टाइम पे पोर्शन तो खत्म हो जाएगा बट हमारा रिवीजन हो पाएगा क्या, हम कितनी बार रिवीजन कर पाएंगे, इज अ क्वेश्चन मार्क. क्योंकि इट डिपेंड्स, हर स्टूडेंट का वीक पॉइंट अलग होता है. हर स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट ईजी जाता है तो कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है, राइट. तो अभी पढ़ते वक्त लेक्चर्स को ठीक से सुनो. आपको दिए गए
एमसीक्यूज की अभी इमीडिएटली प्रैक्टिस करो. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स कॉन्टैक्ट मी. फिनिश द होमवर्क ऑन टाइम. तो इससे क्या हो जाएगा, रोज का लेक्चर और दिया गया 1 घंटा. राइट, आपको कंपलसरी रोज की रोज वो लेक्चर का रिविजन करना है. राइट, एज आई टोल्ड यू इफ यू रिमेंबर, आपको क्या करना है, आपने लेक्चर सुना, उसके बाद रोज रात को जस्ट गो थ्रू टैक्स में आज मैम ने क्या पढ़ाया. यू वोंट टेक मोर देन 15 मिनट्स माय डियर स्टूडेंट्स. वो हुआ, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो. एंड इफ यू आर डूइंग दिस, आपको एग्जाम के पहले एग्जाम के पहले 1 रिविजन विल बी इनफ. और रिविजन नहीं भी हो पाई तो भी आप अच्छे से कर सकते हो. ओके, तो एमसीक्यूज वगैरह उसके साथ साथ तो क्या हो जाएगा, चैप्टर्स रोज की रोज में रिवीजन भी हो जाएगा और रोज की रोज अच्छे से हो भी जाएगा. ओके, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ बल्क टाइम, इट इज ईजियर टू गिव 15 मिनट्स to 20 minutes every day. Okay, yes, come on. So where were we? Calculation of tax liability in case of individual. हम लोग पहुंचे थे surcharge पे. तो surcharge के लिए what are the rates? Come on, tell me my dear students. Surcharge के लिए the rates are 0 to 50 lakhs. अगर आपका इनकम 50 लाख तक हो तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है. बट इफ योर इनकम एक्सीड्स बाय 50 lakhs अप टू 1 करोड़, मतलब अगर आपकी इनकम 1 करोड़ भी होगी तो आपको सरचार्ज रेट क्या एप्लीकेबल होगा. कम ऑन टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स. 10%. राइट, उसके ऊपर इफ योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ भी होगी तो आपको कितना सरचार्ज एप्लीकेबल होगा. कम ऑन, यस, कितना सरचार्ज होगा. Yes, मैंने 15% बोला क्या, it should be 10% and then at this stage 15%. Then if your income exceeds by, come on, 2 crore but up to 5 crore, then 25%. And then if your income is more than 5 crores, 37% का recharge surcharge आपको applicable है. 25% and 37% is the enhanced surcharge, and this enhanced surcharge is not applicable in case of short term capital gain, long term capital gain under section 111A and 222A and also on dividend income. मतलब यहाँ पे surcharge maximum कितना applicable होगा, 15%. Getting it? Okay, yes, fine. Now let's go ahead. ये हुआ एक ऑप्शन. ओके, अब जहाँ पे सरचार्ज रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे सरचार्ज रहेगा वहाँ पे एमआर का बेनिफिट आएगा. व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ? मार्जिनल रिलीफ का कहना ये है कि आपको इनकम अगर मार्जिनली ज़्यादा हो रही है, मतलब अगर मेरा बेंचमार्क इनकम 1 करोड़ है जब सरचार्ज एप्लीकेबल होता है और मेरा इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, 1 करोड़ 2 लाख है, मार्जिनली इनकम ज़्यादा है, तो आप क्या करो, एक्चुअल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो, फिर बेंचमार्क इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो, इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन टैक्स का कंपैरिजन करो. अगर टैक्स का इंक्रीज इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, इसका मतलब है आप पे नाइंसाफी हो रही है और तब मार्जिनल रिलीफ आएगा और आपको इस नाइंसाफी से मुक्त कर देगा. अंडरस्टैंडिंग? ओके, देन टैक्स पर सरचार्ज में से मार्जिनल रिलीफ लेस करने के बाद आता है जो फिगर आता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एडेड एट द रेट ऑफ 4%. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब फ्रॉम दिस पर्टिकुलर PY ऑप्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल. प्लीज बी पेशेंट एंड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. आपको लगता होगा मैम हमें रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करना है, दैट इज माई ड्यूटी, बट फॉर नाउ दिस रिविजन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. ओके, यस, इस PY से इंडिविजुअल के केस में एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अंडर सेक्शन 115 BAD. मतलब 115 BAD हमको कहता है कि आप क्या करते हो, आप नॉर्मली ऑप्शन 1 के अंडर क्या करते हो, 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंडर टोटल इनकम लेते हो, फिर उसमें से डिडक्शंस लेस करते हो. यस, 115 BAC. यस, फिर उसमें क्या करते हैं, ओके, यस, फिर उसमें से हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शंस लेस करते हैं. डिडक्शंस लेस करने के बाद टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं. व्हाट डज सेक्शन 115 BAC सेज? सेक्शन 115 BAC हमको कहना चाहता है कि रुको, आप ये सारे एग्जेम्पशंस और रिडक्शंस छोड़ दो. 5 हेड ऑफ इनकम के अंदर भी आपको कुछ एग्जेम्पशंस रिडक्शंस दिए जाते हैं और इन टोटल इनकम में से अभी आपको डिडक्शंस मिले जाते हैं. आप ये सब छोड़ दो तो आपको लोअर टैक्स रेट्स में आपको टैक्स पे करना मिलेगा. डू यू गेट इट? ओके, तो अंडर सेक्शन 115 BAC there is a change in computation of income and there is a change in tax liability. बाकी सब कुछ सेम, rebate सेम, surcharge सेम, marginal relief सेम and cess remains same. Understanding? So this is in case of an individual. Now in case of HUF, AOP, BOI and AJP, tax slab 1 is applicable. That is income 0 to 2,50,000, 5%, 2,50,000 to 5 lakh, 0 to 2,50,000, 0%, 2,50,000 to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%. डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस.
मेरे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. ओके, यस. एंड अबव 10 लाख 30%. इसमें क्या हो जाएगा? लेस रिबेट हो जाएगा क्या फॉर HUF? कम ऑन, सोनाली, आशीष, अनुष्का, यस टेल मी, क्या रिबेट लेस होगा? कॉपी बोल रहा है. यस करण, प्लीज रिपीट, व्हाट डू यू वांट टू से? ओके, तो आप प्लीज म्यूट योर सेल्फ. पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट योर सेल्फ, क्योंकि मेरे यहाँ पे आप लोग सब म्यूटेड हो. नो, एवरीवन इज म्यूटेड हियर. ओके, यस, नो प्रॉब्लम. ओके, यस, लेट्स कंटिन्यू. तो हम कहाँ पे थे? यस, HUF AOP. तो कम ऑन सोनाली, योर आंसर इज रॉन्ग. हाउ कैन यू इवन टेल मी? कम ऑन टेल मी, क्या HUF को रिबेट मिलता है? यस और नो? नो, HUF को रिबेट नहीं मिलता. वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड करण. यस, ओके, HUF को रिबेट नहीं मिलता बिकॉज रिबेट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल. ठीक है, आगे. नेक्स्ट, surcharge same, marginal relief same, cess same as that of individual. Okay, yes, let's go further. हमने क्या देखा? नेक्स्ट, कंपनी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कंपनी, कम ऑन. कंपनी कितने टाइप्स की होती है? इंडियन कंपनी भी हमने डिस्कस किया, डोमेस्टिक कंपनी भी हमने डिस्कस किया, एंड फॉरेन कंपनी भी डिस्कस किया. व्हाट इज अ इंडियन कंपनी? सी ब्रॉडली, कम ऑन एवरीवन विथ मी. Company can be an Indian company or a foreign company. Indian company is a company which is registered in India. Foreign company is a company which is registered outside India. Very simple. Okay, but out of those companies which are registered outside India, few declare dividend in India. Few companies declare dividend in India and few companies do not declare dividend in India. मतलब अगर आप इंडिया में भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो आपको डोमेस्टिक कंपनी कहा जाता है. ओके, तो डोमेस्टिक कंपनी क्या कहता है? ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनीज. मतलब जो कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड है वो भी डोमेस्टिक कंपनीज है, और जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है बट इंडिया में डिविडेंड पे करते हैं उनको भी डोमेस्टिक कंपनी है. मीन्स अ ब्रॉडर कैटेगरी इज डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. तो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का हमने टैक्सेबिलिटी देखा. तो डोमेस्टिक कंपनी में हमारे पास 4 रेट्स अवेलेबल है. विच आर द 4 रेट्स? If your turnover in the PY 18-19 is up to 400 crores, क्यों PY 18-19? इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी. अगर आपका अप टू 400 crores होगा तो आपको टैक्स लायबिलिटी, टैक्स रेट, फ्लैट रेट कितना मिलेगा? एट व्हाट रेट you'll have to pay tax? 25%. और अगर 400 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा रहा तो 30%. राइट, देन 115 BAB, 115 BAA and BAB has been introduced. 115 BAA क्या कहता है? आपको 22% का टैक्स पे करना पड़ेगा. बट देयर वी हैव सम कंडीशंस. आपको कुछ बेनिफिट्स छोड़ देने पड़ेंगे, तभी आपको हम लोअर टैक्स रेट में टैक्स पे करने का परमिशन देंगे. चाहे आपका टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो, 400 करोड़ से ज्यादा हो, 400 करोड़ से कम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपको 22% से टैक्स पे करना है, बट यू विल हैव टू लीव सर्टेन कंडीशंस, व्हिच इज सर्टेन बेनिफिट्स. व्हिच आर दे? ये हम लोग देखेंगे जब वी सी द चैप्टर PGBP. ओके, बट यहाँ पे उनका क्या कहना है कि अगर 115 BAA के अंडर आप 22% पे टैक्स पे करते हो तो उस पर आपको फ्लैट सरचार्ज लगेगा. मतलब क्या? अब तक हम सरचार्ज क्या करते थे? इनकम पे कंपेयर करके देखते थे. हाँ, आपका इनकम कितना है उसके हिसाब से हम सरचार्ज का रेट अब लगाते थे. बट हियर अंडर सेक्शन 115 BAA फ्लैट 10% सरचार्ज. मतलब क्या? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. आपका इनकम अगर 1 रुपी, 0 रुपी, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ कितना भी हुआ तो भी आपको फ्लैट सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10% एंड देन सेस एट द रेट ऑफ 4%. क्लियर? ओके, व्हाट डज 115 BAB से? 115 BAB क्या कहता है कि अगर आप नए कंपनी हो, इफ यू आर स्टार्टअप एंड स्टार्टअप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इफ यू आर इंडल्ज्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग, इन दैट केस आपको टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 15%, सरचार्ज फ्लैट रेट 10% और सेस 4%. ओके, गेटिंग इट? Yes, my dear students. And what are the surcharge rates? Come on, what are the surcharge rates in case of 25% and 40%? Who will tell me? 25% and 30%. Yes, surcharge rates क्या है? कौन बताएगा? Sonali. Yes, waiting for your answers. कोई नहीं? Nobody?
कहाँ पे हो सब लोग? मनीषा, यस क्या देखा हमने कि अप टू 1 करोड़, अगर आपका इनकम अप टू 1 करोड़ होगा, यस ओके, हाँ आशीष इज देयर हियर टू रिप्लाई, नो प्रॉब्लम. अगर आपका इनकम, आई सी इफ आई कैन जस्ट मिनिमाइज, ओके यस दिस इज बेटर, ओके यस. अगर आपका इनकम अप टू 1 करोड़ होगा, डोमेस्टिक कंपनी, देन 0%. 1 crore to 10 crore 7%, more than 10 crore 12%. ओके. अब फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी के केस में हमने क्या देखा? इफ द फॉरेन कंपनी इज अर्निंग स्पेसिफाइड इनकम तो 50% टैक्सेबिलिटी, अदर इनकम तो 40%. ओके यस, उनको सरचार्ज रेट्स क्या एप्लीकेबल है? अप टू 1 करोड़, मतलब 0 to 1 crore 0%, 1 crore to 10 crore 2%, and more than 10 crore 5%. Correct? Correct. These are the surcharge rates which are applicable. Okay. Yes. In case of partnership firm, LLP and local authority, हमने क्या देखा? Flat rate 30%. Right. फिर surcharge उनको applicable है and cess applicable है. Then in case of cooperative society, again cooperative society has been given with 2 options. Which are the 2 options? Option 1 and option 2 under section 115 BAD. Right. Option 1 क्या है? Up to 10,000 10%. Right. Then 20,000 to आगे का लिमिट, राइट? 20,000 टू हाउ मच इज दिस? 40,000. राइट एवरीवन, यस और नो? एंड अगर आपका इनकम उससे ज्यादा होगा, यस यस, 10,000 टू 20,000 20%, और 20% 20,000 से ज्यादा होगा तो 30%. 115 BAD इज वेरी इंपॉर्टेंट. 115 BAD क्या बोलता है? फ्लैट रेट 22%. ओके, फ्लैट रेट क्या हो जाएगा? 22%. सरचार्ज 10% इन ऑल केसेस, and cess at the rate of 4%. Getting it? Getting it everyone? Okay? Yes. एक next बहुत important चीज़ मैंने जो डिस्कस की है वो ये है कि इंडिविजुअल के केस में हमारे पास 2 ऑप्शंस है. वी हैव टू सी विच इज़ बेनिफिशियल. मतलब जब भी, एनी टाइम, वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी अंडर ऑप्शन 1, अंडर ऑप्शन 2, एंड यू हैव टू चेक विच एवर इज बेनिफिशियल. बेनिफिशियल मतलब इंडिविजुअल को किस ऑप्शन में कम टैक्स आ रहा है. That becomes beneficial from the assessee point of view, right? तो उसको क्या करना है आपको? उस केस में you have to pay tax at lower rates. वो जो ऑप्शन होगा वो आप जिस ऑप्शन में कम टैक्स आएगा उसको आप चूज करोगे. करेक्ट? ओके. नेक्स्ट, इन केस ऑफ HUF आपके पास ऑप्शन है AOP, BOI, AJP, no option is available, only option 1 is available. Then in case of partnership firm, LLP, local authority, no option. In case of domestic company, available. In case of foreign company, not available. And in case of cooperative society, again option is available. And wherever options are available, you have to calculate under both the options and see which is beneficial for the assessee, and then that option shall be chosen. Clear everyone? Clear everyone? Okay? Okay, so this was all about the first chapter. Okay? Yes. अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, that is residential status. Now my dear students, the next question that comes to you is why is residential status important? हमको residential status की पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? Why do we need to understand? See, understand my dear students. हम see, every government wants income, right? Government का income कहाँ से होता है? Taxes से होता है, right? But tell me one thing, my dear students. There, हर government, okay, India में अगर हम लोग, you know, in the whole entire world, there are so many countries, right? Every country has their own mechanism of running the country. Every country has its own government, right? Its own, power. It has its own power, as it is known as, correct? तो अब क्या होता है ना कि हर कंट्री दुनिया के हर इंसान से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती. हर कंट्री दुनिया के हर इंसान से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती. ओके, मतलब क्या? मतलब इनका कहना ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट किससे टैक्स वसूल कर सकती है और किससे नहीं कर सकती, ये बताया गया है हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कि इंडियन गवर्नमेंट किससे टैक्स वसूल कर सकती है और किससे नहीं. ओके, तो आपके मन में सवाल तो आ गया कि इट इज अ वेरी सिंपल आंसर मैम, व्हाई डू वी इवन वांट टू थिंक? ओके, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? इसमें इमीडिएटली अपने दिमाग में जो भी आता है कि जो इंडिया में रहते हैं उनसे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर देगी.
राइट राइट. बट टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, आपके कितने भाई और आपकी कितनी, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ योर्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु हैव गॉन आउटसाइड इंडिया, ओके, और वहाँ पे वो लोग जॉब कर रहे हैं? चलो बताओ. फैमिली तो यहाँ पे है, बट सिर्फ दे हैव गॉन टू फॉरेन कंट्री टू डू देयर जॉब, राइट. वहाँ पे इनकम अर्न करते हैं और वहाँ से इंडिया में पैसे भेजते हैं. चलो बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू? ओके. तो अब आपके मन में सवाल आया कि वो तो इंडियन है, राइट, किसी पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गए और वहाँ से पैसे भी भेजते, अब इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले पाएगी या नहीं पाएगी? नेक्स्ट सवाल, से कोई पेरेंट्स है, ओके, से मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स. मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स इज अ कपल, एज ओल्ड, उनका एज है अभी अराउंड 60-61 ईयर्स के एज के कपल है, ओके. इनका एक सन है, ओके, एंड दिस सन मिस्टर वाई हैज सेटल्ड इन यूएसए, और उनकी वाइफ है वहाँ पे, और अब उनको एक वहाँ पे बेटा ही हो गया है, वो वहाँ पे ही सेटल हो गए हैं. और अब मिस्टर एक्स मिसेस एक्स क्या करते हैं, थोड़ा साल के कुछ दिन इंडिया में रहते हैं, साल के कुछ दिन अमेरिका में जाके रहते हैं. अब सवाल आया, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड, अब ये इंडिया में भी रहते हैं, आउटसाइड इंडिया में भी रहते हैं, ओके, तो अब इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे हो? राइट. या कोई ऐसा है कि उसको जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस करते हैं, उनका क्या है, दे एक्चुअली आर इंडियंस, बट क्या होता है, एज पर गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्शंस आते हैं, गवर्नमेंट के जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उसके हिसाब से उनको क्या करना पड़ता है, उनको फॉरेन कंट्रीज में जाके उनके साथ ट्रीटीज करनी पड़ती है, राइट. उनके साथ सारे निगोशिएशंस रहती है, राइट, डिस्कशंस रहते हैं. करेक्ट एवरीवन. तो फिर इनका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा? Right, so therefore this chapter residential status is very important, because residential status अपने को बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले पाएगी या नहीं ले पाएगी. Understanding residential status determines the scope of income. मतलब क्या my dear students? See, understand. जो मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स रहते हैं ना इंडिया में, उनका यहाँ पे एक से इज अ कंपनी सेक्रेटरी. मिस्टर एक्स क्या थे, अपने ज़माने में कंपनी सेक्रेटरी थे, उनकी वेल प्रैक्टिस है यहाँ पे, बराबर है ना. तो इसके लिए क्या किया है उन्होंने किसी यंग कंपनी सेक्रेटरी को क्या दे दिया है, वो ऑफिस अपना चलाने के लिए दे दिया है, ओके. इसलिए साल के कुछ दिन जब वो इंडिया में आते हैं तो देखते हैं क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, किसका पैसा आया है, किसका पैसा नहीं आया है, कितना आया है, कितना आना बाकी है, राइट. मतलब ही इज अर्निंग इनकम इन इंडिया. और जब वो अपने बेटे के पास जाते हैं ना अमेरिका में, तो मिसेस एक्स इज एन एक्सेलेंट कुक, तो वहाँ पे जो भी इंडियंस है वो उनको बड़ा प्यार से खाना बना के खिलाती है, और वो अपना इनकम वहाँ पे अर्न करती है. मतलब यहाँ पे मिस्टर एक्स मिसेस एक्स इज अर्निंग इनकम इन इंडिया ऑल्सो, एंड अर्निंग इनकम इन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो. अंडरस्टैंडिंग. तो रेसिडेंशियल स्टेटस अपने को बताएगा कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है तो किससे ले सकती है, और इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी वो कौन से इनकम पे ले सकती है. Understanding. So in this particular chapter we are going to understand the scope of taxability and the scope of and the nature of income. Okay, मतलब taxability जो arise होती है, ओके, वो किस पे ले सकते हैं, राइट. अगर इंडियन गवर्नमेंट का मन करे तो क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के पास द मोमेंट ही इज एग्जिट द व्हाइट हाउस, क्या इंडियन गवर्नमेंट उसके पास जाके बोल सकती है चल इधर हमको टैक्स दे? नो. There are a few conditions to be fulfilled in order that taxability arises in India. समझ में आ रहा है सबको? Understanding? Okay. So here residential status is going to tell us two things. What is your residential status? मतलब what would taxability arise in India or not? And what is the scope of income? What is the nature of your income? Income is Indian income or income is foreign income. So in order to understand this residential status, we have to understand section 5 to section 9. Section 5 हमको क्या बोलता है? What is the scope of total income? Section 5 tells us what is the scope of total income. Okay, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में. पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस. फिर आता है इनकम की बारी. देन डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज सेक्शन 6. Okay, then incomes deemed to be received in India previous year and incomes deemed to accrue or arise in India.
Okay, so the first thing that we are going to learn is section 6, okay, determination of residential status. Okay, why to determine residential status? For ascertaining scope of total income, allowability, allowability or non-allowability of certain exemptions, deductions, rebates and reliefs, for determination of applicable tax rates, for applicability of TDS TCS provisions. What is TDS, what is TCS, we're going to see in डिटेल. ओके, तो रेसिडेंशियल स्टेटस, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. अब हमने क्या देखा, जब हमने टैक्सेबिलिटी देखा ना, टैक्स कैसे कंप्यूट करना है, तो हमने इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट है, इन केस ऑफ HUF डिफरेंट है, इन केस ऑफ AOP BOI HAP अलग है, कंपनी का अलग है. बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हर तरह के पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करने का तरीका अलग है. मतलब कैसे, व्हाई, इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ. अगर हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाले, तो इंडिविजुअल कभी भी अपनी बैग उठाया और वो इंडिया के बाहर चला गया, फिर इंडिया में आ गया, जब मन किया तब वापस बाहर चला गया, फिर वापस इंडिया में आया. बट इन केस ऑफ कंपनी कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कंपनी एक जगह पे ही उसका बिल्डिंग होता है, वो बिल्डिंग कैन नॉट फ्लाई, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता. सो जो पर्सन्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, जो कंपनी के डिसीजंस लेते हैं, उनके हिसाब से हमको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट. सो वी हैव रेसिडेंशियल स्टेटस, वी हैव टू स्टडी रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, देन वी हैव टू स्टडी रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ एन HUF, then we have AOP, BOI, AJP, then also we have in case of firm or LLP, then also in case of company. So these are the different categories of persons जिनका residential status हम लोग देखेंगे. So for now we shall be focusing on individual. Getting it? Okay? Yes. Rules for determining residential status. अब क्या कहना है? अब ये जो residential status है, okay, in case of an individual, okay, so what does Income Tax Act says? Income Tax Act says that every person, okay, you listen to those words. The words are every person has to pay what? Every individual. उनका ऐसा कहना नहीं है कि जो इंडिविजुअल इंडिया में रहता है या इंडिया के बाहर रहता है. All individuals, okay, all individuals have certain conditions. अगर वो conditions fulfill करते हैं तो वो resident है, अगर conditions नहीं fulfill करते तो वो resident नहीं है. Okay, so in order to determine the residential status in case of an individual, we have a set of conditions. Okay, उनका आधार कार्ड कहाँ का है, उनका पैन कार्ड कहाँ का है, nothing matters. Only set of conditions के पास देखो. Okay, उनके set of conditions के पास देखो. If the conditions are fulfilled, resident. If not fulfilled, non-resident. Clear? Okay, so yes, चलो. उनके टेक्निकली आगे जाने से पहले I would want to show you a small diagram. So in case of an individual, there are two categories, resident and non-resident. A particular individual will be a resident or a non-resident depends upon a set of basic conditions. Yes, depends upon a set of basic conditions. Okay, if depends upon the basic conditions. Now, if a particular individual satisfies any one or both, मतलब कितने conditions है यहाँ पे? दो basic conditions है. कितने कंडीशंस है? दो बेसिक कंडीशंस है. अगर एनी वन या बोथ बेसिक कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हुए तो वो इंडिविजुअल क्या बन जाता है? रेसिडेंट. और अगर नन ऑफ द बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई हुए देन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिकम्स अ नॉन रेसिडेंट. अब वो बेसिक कंडीशंस क्या है हम लोग देखेंगे. पहले ब्रॉड आउटलुक में समझ लेते हैं कि हाउ इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कैलकुलेटेड. सो एन इंडिविजुअल मे बी अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट. एन इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन और बोथ ऑफ द basic conditions, and is a non-resident if none of the basic conditions are satisfied. Then this resident category को further दो categories में divide कर दिया गया है. इस resident के category को further दो categories में divide कर दिया है. Resident and ordinarily resident, resident and ordinarily resident, resident and not ordinarily resident. Okay, resident and not ordinary resident. जैसे कि
जैसे कि ओके जैसे कि टू डिसाइड वेदर रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, देर आर बेसिक कंडीशंस इन द सेम वे ROR है कि RNOR है, ये डिसाइड करने के लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस है, कुछ एडिशनल कंडीशंस है. अब ये एडिशनल कंडीशंस कितने हैं? अगेन 2 एडिशनल कंडीशंस, अगेन 2 एडिशनल कंडीशंस. ओके, तो इनका क्या कहना है कि इफ बोथ, 1 minute, yes, इनका क्या कहना है? इफ बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, if both the additional conditions are satisfied, this resident becomes a ROR. Okay, and if any one or none of the additional conditions are satisfied, then this particular person becomes a resident and resident but not ordinarily resident. अब मुझे बताओ, अब नेक्स्ट सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, मैम क्या ये कैटेगरीज फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है? तो एब्सोल्युटली येस. वाई? बिकॉज अपना टैक्सेबिलिटी, because our taxability is different in case of an ROR and different in case of an RNOR. Okay, everyone along with me. इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस अब जब निकालेंगे तो वी विल सी वेदर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं. ओके, अगर बेसिक कंडीशंस के क्राइटेरिया पे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट तय होता है, इफ एनी वन और बोथ ऑफ द बेसिक कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ही बिकम्स अ R, एंड इफ नन ऑफ द बेसिक कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ही बिकम्स एन NR. ओके, फिर R की कैटेगरी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ROR एंड RNOR. ओके, अब एडिशनल कंडीशंस कितने हैं? 2. इफ बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दैट पर्टिकुलर रेसिडेंट इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. इफ एनीवन और नन ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ओके, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज RNOR. अपने बाजू में जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी आपके बाजू में नॉइसेस कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस, टेल देम टू जस्ट गो आउट ऑफ द रूम. Okay, nothing should disturb you right now. Full focus should be on this particular lecture और जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ओके, यस. तो अब हमने देखा कि मैम अब हम क्या पढ़ रहे हैं. वी आर स्टडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. इट हैज़ बीन गिवन टू अस इन सेक्शन 6 डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस. उसमें इंडिविजुअल के लिए सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) क्या कहता है? एन इंडिविजुअल कैन बी अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. डिसाइडिंग क्राइटेरिया बेसिक कंडीशंस. Anyone or both resident, none then non-resident. Then this resident is further divided into ROR, RNOR. Deciding criteria additional conditions. अगर ये additional conditions satisfy होते हैं, okay, कितने? Both, then ROR. If anyone or none, then RNOR. Clear everyone? ओके, तो चलो अभी तक ये बाय हार्ट हो गए. अब देखते हैं कि बेसिक कंडीशंस क्या है. विच आर द बेसिक कंडीशंस विच वुड डिसाइड द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ओके, ये बेसिक कंडीशंस है. फर्स्ट, stay for at least 182 days in India during the previous year. Stay for at least 182 days in India during the previous year. Read it once again. Stay for at least 182 days in India during the previous year. मतलब क्या? Yes. Okay, ये summary book है. Okay, in this summary book I've tried to make it simpler for you. Okay, you can take it down. Okay, तो basic conditions. Right now we are discussing what? We are discussing these basic conditions. तो ये basic conditions क्या कहते हैं? ये basic conditions कहते हैं कि इंडिया में 182 डेज और मोर होने चाहिए. ओके, नाउ माय क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप ये ठीक से देखते हैं, I'll come back to this. इसके पहले अगर हम ये देखते हैं तो इन्होंने क्या बोला है? एटलीस्ट 182 डेज. क्या यहाँ पे उन्होंने ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया कि 182 कंटिन्यूअस डेज होने चाहिए, एक साथ आप इंडिया में 182 डेज होने चाहिए? नहीं.
उन्होंने क्या बोला है कि हमारा कौन सा पीवाई है. सी लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यहाँ पे इनकम टैक्स में दो कॉन्सेप्ट्स है, पीवाई और एवाई. पीवाई में इनकम अर्न करते हैं, एवाई में इनकम सिर्फ टैक्स करते हैं. बराबर है. मतलब यहाँ पे इनकम कब अर्न करते हैं, पीवाई में. सो हियर वी हैव टू चेक द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर. कम ऑन वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन. सोचो कि यहाँ पे हम रेसिडेंशियल स्टेटस पीवाई का कैलकुलेट करेंगे कि एवाई का. कम ऑन. यस सी आई एम ना, मुझे आपके मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं. ओके तो अगर कोई मैसेज अनरेड चला जाता है तो आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं. यस कम ऑन. प्रीवियस ईयर, वेरी 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 ब्रिलियंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके क्यों यहाँ पे प्रीवियस ईयर का हम लोग निकालेंगे? क्योंकि प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस जब हम निकालेंगे तो तभी अपने को पता चलेगा कि हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं ना, यस तभी अपने को पता चलेगा कि हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं पीवाई में वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा. क्योंकि एवाई में तो सिर्फ टैक्स होने वाला है. ओके इनकम कहाँ अर्न किया, कितना अर्न किया, क्या ओके कितना इनकम आएगा, ये तो पीवाई डिसाइड करता है. सो हियर रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी कैलकुलेटेड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर. ओके मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे पीवाई देखना है. सो अपना पीवाई अपने एग्जाम के लिए कौन सा पीवाई एप्लीकेबल है? कम ऑन टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स. ओके पीवाई 2021. मतलब एवाई कौन सा? बिल्कुल नेक्स्ट ईयर. एवाई 21-22. एवाई 21-22. नो प्रॉब्लम. इनका क्या कहना है कि स्टे फॉर एटलीस्ट 182 डेज. आप किसी भी पर्पस के लिए आओ, किसी भी काम के लिए आओ, इनका कुछ भी कहना नहीं है. अगर आप इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा अगर आप आते हो तो आप रेसिडेंट हो. चाहे किसी भी पर्पस के लिए आओ, चाहे आप आओ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप किसी साल में किसी पीवाई में इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा हो देन यू विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट. ओके मतलब अगर हम पीवाई 2021 की बात करते हैं तो कम ऑन टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, पीवाई 2021 कब स्टार्ट होता है? पीवाई 2021 कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम 1/4/20 को पीवाई 2021 स्टार्ट होता है एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 21. यहाँ तक कोई डाउट? इनकम टैक्स में अगर आपको याद होगा, इनकम टैक्स में हम कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो अगर मैं 2021 बोलती हूँ तो 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 मीन्स माई पीवाई 2021. नो प्रॉब्लम. तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या बोलता है कि इस दोनों डेट्स के बीच में आप इंडिया में कितने डेज के लिए होने चाहिए? 182 डेज और मोर. एनी डाउट्स? Anyone having any doubts? Okay? No? अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? ओके अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट कंडीशन हैज टू टेल अस. Yes. The next condition says stay for at least 60 days in India. See और बोला है. ओके अगर आप कंडीशंस को देखते हो तो कंडीशंस में हमने क्या देखा? एनी वन और बोथ, तो रेसिडेंट. मतलब इन दोनों में से ये फॉलो किया, ये नहीं किया तो भी रेसिडेंट. अगर ये नहीं किया, ये किया तो भी रेसिडेंट. और अगर दोनों किए तो भी रेसिडेंट. ओके पर अगर दोनों नहीं किए देन यू बिकम एन एनआर. इन ऑल दीज अदर केसेस यू आर व्हाट? अ रेसिडेंट. बराबर है. मतलब दोनों में से एक भी सेटिस्फाई किया तो आप रेसिडेंट हो जाते हो. ओके ठीक है. तो पहला कंडीशन क्या है कि आपके पीवाई 1/4/20 से 31 मार्च 21 के बीच में यू शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर. अगर आप 182 डेज के लिए भी हो देन यू बिकम अ रेसिडेंट, क्योंकि वर्ड्स यूज्ड आर 182 डेज और मोर. ओके फिर अगर आप सेकंड कंडीशन देखते हैं तो क्या बोला है उन्होंने? स्टे फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन पीवाई plus total stay for at least 365 days in India during 4 years immediately preceding the previous year. मतलब इनका इधर क्या कहना है? इनका कहना है कि यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में फिर से दो पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए एंड पार्ट बी कैसा है? पार्ट ए एंड पार्ट बी, सी आई टेल यू. पार्ट ए अपने को क्या बोलता है? पार्ट ए एंड पार्ट बी. वाई पार्ट ए एंड पार्ट बी? आई टेल यू हियर. इनका क्या कहना है कि
पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, अब हम पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, किस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, PY 2021। PY 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 1/4/20 से 31 मार्च 21 तक, उनका क्या कहना है कि इस साल के दरमियान, यस उनका क्या कहना है कि इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के दरमियान यू शुड बी इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। ओके, और इसके पीछे जो 5 PYs है, 4 PYs है, इसके पीछे जो 4 PYs है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर स्पीकिंग अबाउट PY, वी आर स्पीकिंग अबाउट AY 21-22। AY 21-22 का पिछला साल होता है PY 2021। इस PY 2021 के 4 पिछले PYs, मतलब 19-20, 18-19, 17-18, 16-17। Come on my dear students, once again 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 4 previous PYs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। PY 2021 के इमीडिएटली प्रिसीडिंग 4 PYs, उसके पिछले 4 PYs में आप इंडिया में कितने दिनों के लिए होने चाहिए, 365 डेज और मोर। मतलब उस रिस्पेक्टिव PY 2021 में 60 दिन के लिए, और उसके पिछले 4 PYs में यू शुड बी इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर। क्लियर? Clear everyone? So come on, which are the 2 basic conditions, my dear students? Okay, we are checking the residential status or residential status. Everyone with me, residential status हम लोग individual का देख रहे हैं. Individual can be a resident, can be a non-resident. It depends upon the basic conditions. How many basic conditions are there? 2 basic conditions. Which are the 2 basic conditions? First basic condition, PY 2021, 1/4/20 से लेके 31/3/21 इसके बीच में in India for 182 days or more. फर्स्ट कंडीशन। ओके, कंटिन्यूअस स्टे नॉट नेसेसरी। किस पर्पज के लिए? नॉट रेलेवेंट। अगर आप इंडिया में प्रेजेंट हो, काम खत्म, कुछ भी करने के लिए क्यों ना आए हो, अगर आप इंडिया में प्रेजेंट हो फॉर 182 डेज और मोर, देन व्हाट, यू आर अ रेसिडेंट। ओके, यस। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन में 2 पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सेकेंड कंडीशन के 2 पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, अब सेकेंड कंडीशन फुलफिल करनी होगी तो दोनों पार्ट्स एक साथ फुलफिल करनी पड़ेगी। इफ यू सी द वर्ड्स, बेसिक कंडीशंस 1 और 2, बट अगर सेकेंड कंडीशन में 2 पार्ट है तो सेकेंड कंडीशन के दोनों पार्ट फुलफिल होए तो ही सेकेंड कंडीशन फुलफिल होगी। और इसका पार्ट 1 क्या है कि इस पर्टिकुलर PY में, ओके, यस, कि उनका क्या कहना है कि इस पर्टिकुलर PY में यू शुड बी इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर। ओके, और इसके 5-4 पिछले 4 PYs में यू शुड बी इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर। क्लियर? मतलब पिछले 4 सालों में एटलीस्ट 1 साल पूरा आप इंडिया में चाहिए। अब कंटिन्यूसली होने चाहिए क्या 1 साल? नो। ओके, पूरे 4 सालों में आप आ रहे हो इंडिया में, जा रहे हो, इंडिया में आ रहे हो, इंडिया में जा रहे हो, किसी भी पर्पज के लिए क्यों ना आओ, इन दैट केस आपका टोटल स्टे इन इंडिया पिछले 4 सालों में, मतलब 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, मतलब अगर हम देखते हैं तो इसका साल कब चालू होता है? 1/4/2017 से लेके 31 मार्च 20 तक। इस पीरियड में यू शुड बी इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर। क्लियर एवरीवन? ओके, yes, so these are the 2 basic conditions. These are the 2 basic conditions. Okay, no problem. Okay, अब चलते हैं आगे। Okay, so हमने ये 2 basic conditions देखे। Okay, do you want to take it down, my dear students? आप लोगों को वैसे टाइमलाइन लिख के लेना है आपके बुक में to make it easier? No? Okay, no problem. Let's go ahead further. Okay, so condition 1 and condition 2. These are the 2 basic conditions. Okay, अब चलते हैं आगे। There are a few exceptions. Okay, there are a few exceptions. Before we go to additional conditions, let's first understand in detail what the basic conditions have to tell us. Okay, यहाँ पे basic conditions हमको क्या बोलते हैं कि ये 2 conditions है, अगर पूरे के पूरे fulfill हो गए तो आप resident नहीं हुए, anyone पूरे के पूरे नहीं हुए तो आप non-resident, no problem. अब there are a few exceptions. What are these exceptions? Let us understand. What are these exceptions? In exceptions के केस में, my dear students, okay,
आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि आप लोग टाइमलाइन अच्छे से लिख के लो, ताकि आप लोग याद कर सकते हो कि हम कौन से सालों की बात कर रहे हैं. ओके, सो दैट विल गिव यू एन एज. आप प्रैक्टिस करोगे तब यू विल रियलाइज इट, यू विल हैव एन एज कि कौन से पी वाइज को कंसिडर करना है, कौन से पी वाइज को कंसिडर नहीं करना है. सो आई यू श्योर, बट आई वुड स्टिल से दोज हू वांट टू राइट मे राइट, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको याद करना, याद रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ट्रस्ट मी, ये टाइमलाइंस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यू टेक दिस टाइमलाइंस डाउन इन द नोटबुक बिफोर वी गो टू द एक्सेप्शंस. हम जब एक्सेप्शंस देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि हाउ इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इट इज टू रिमेंबर दीज कंडीशंस. कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेक डाउन दीज. आई एम राइट नाउ स्पीकिंग ओनली ऑफ बेसिक कंडीशंस. एडिशनल कंडीशंस हम बाद में देखेंगे. कम ऑन, क्विकली टेक दीज डाउन इन योर नोटबुक्स. Done, everyone? Shall we go ahead? Done? Okay. यस, अब चलते हैं हम लोग एक्सेप्शंस की ओर. सी, अंडरस्टैंड क्या कहा गया है. इफ यू आर एन इंडिविजुअल, in that case you have a certain basic conditions, and if you satisfy these basic conditions, then anyone or both, then resident. If none, then non-resident. Now these basic conditions are how many? 2. Okay, 2. Now there are a few exceptions जहाँ पे 2 basic conditions नहीं, only first basic condition is applicable. Only first basic condition is applicable. Now which are they? Let us understand. पहले हम लोग लॉजिक समझेंगे ताकि हमको याद रखने में ईजी रहेगा. ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट बेसिक कंडीशन. व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन जहाँ पे एक पहला बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है. इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया during the previous year for the purposes of employment outside India. Okay, Indian citizen who leaves India during the previous year for the purposes of employment outside India. Okay, अब समझते हैं हम लोग. Say for example, this is India. Okay, इस इंडिया में you have this Indian citizen. Okay, this Indian citizen has got employment, say in USA. Okay, so he's going for employment outside India. He's going for what purposes? The purpose is very important. आप क्यों जा रहे हो? घूमने के लिए? किसी कंपटीशन के लिए? किसके लिए जा रहे हो? पढ़ने के लिए? No, this Indian citizen is going outside India only and only for the purposes of employment. Okay, only and only for the purposes of employment. Okay, now दिस इज अ वेरी कॉमन केस स्पेशली इन इंडिया. अगर हम इंडिया में देखते हैं ना, आप देखो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना पूरी वर्ल्ड में, जो भी बड़ी कंपनियां हैं उन सबके सीईओज अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आर इंडियंस. इंडिया इज फेमस फॉर ब्रेन ड्रेन. ओके, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेशनल्स. ओके, ठीक है, फिर भी प्रोफेशनल्स अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन नहीं होता. बट इन कंसिडरिंग, इफ यू कंसिडर ऑल द अदर प्रोफेशंस, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन इन इंडिया, राइट.
right? So it is for that purposes. Say for example tomorrow you become a company secretary and you get an employment in a big company in USA. Yes, IT industry also, Mridul, absolutely. Okay, तो अब उसमें क्या हुआ? तो क्या हुआ, आपकी फैमिली कहाँ पे है? इंडिया में। आपको जॉब कहाँ पे मिली है? यूएसए में मिला है, राइट? राइट, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ से इंडिया में क्या भेजोगे? आप वहाँ से इंडिया में भेजोगे फॉरेन करेंसी, डॉलर्स, right? You'll be sending dollars from America to India, right? So in that case Indian government is going to benefit, yes or no? फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो हो रहा है इंडिया में, करेक्ट? तो इस केस में इन लोगों को एक स्पेशल बेनिफिट दिया गया है। ओके, इनका क्या कहना है? व्हाट इज दिस इनकम टैक्स एक्ट सेइंग? इनकम टैक्स एक्ट सेइंग बिकॉज कि इनका फ्यूचर में हमको फायदा होने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उनको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे। मतलब क्या? इन द पीवाई इन विच एम्प्लॉई इज लिविंग इंडिया, मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है, बराबर है, राइट? यहाँ पे हम लोग ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज हम देखेंगे ही शुड बी इन इंडिया इन फॉर 182 डेज और मोर। 60 डेज का क्राइटेरिया हम लोग एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट सवाल आपके मन में आता है, मैम इतना क्या फर्क पड़ गया अगर रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो? एज यू मूव अहेड यू विल रियलाइज, जब हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि रेसिडेंट का पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इनकम क्यों ना कमाए, ऑल ग्लोबल इनकम, एंटायर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। ओके, इसलिए उसका रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट तय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट का उतना ही टैक्सेबल इंडिया से होता है जितना इनकम का इंडिया से लेन देन है। बट इन केस ऑफ रेसिडेंट, चाहे वो कहीं पर भी क्यों इनकम अर्न ना करे, ही हैज टू पे टैक्स इन इंडिया। अंडरस्टैंडिंग? मतलब उनका क्या कहना है कि इस सिटीजन को अमेरिका में जॉब लग गई है, तो इसके पास कुछ महीने होती है तैयारी करने के लिए, राइट? सो हियर वी आर गिविंग यू 182 डेज और मोर, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, बराबर है ना? 365 दिन का आधा, राइट? तो ऑलमोस्ट हम आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं तैयारी करने के लिए, और आप वहां जाओ, अच्छे से जॉब करो, आपने जब मन कर ही लिया है, और इंडिया में आप क्या करो? फॉरेन करेंसी सेंड करो। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? So here in this case second condition is not applicable. Second condition of 60 days is not applicable. क्यों 60 days का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है? कि 60 दिन मतलब 2 महीने तो कहीं पर भी हो जाते हैं ना कवर, बराबर है? एंड ही इज लिविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, उसकी पढ़ाई खत्म हुई, ओके, ही इज लिविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पिछले जितने भी अब तक के ऐसे 25 सालों में 24 सालों में अब तक वो इंडिया में ही था। तो अगर हम पिछले 4 साल देखेंगे तो ऑब्वियसली इज इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर, मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल अगर हो गई तो एनी वन और बोथ तो रेसिडेंट, बराबर है ना? मतलब सिर्फ सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हुई तो भी वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा, फिर उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगा, मतलब अमेरिका में जॉब करेगा फिर भी इंडिया में टैक्स पे करो, राइट? इसलिए उनको क्या कहा गया है? आपको हम 6 महीने का टाइम देते हैं। 6 महीने में अगर आपने डिसाइड कर लिया है यू आर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फटाफट अपना बोरिया बिस्तर यहाँ पे पैक करो और इंडिया से बाहर चले जाओ। ओके, यहाँ पे क्राइटेरिया कितना है? 182 डेज और मोर। अंडरस्टैंडिंग? अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी। ओके, आई एम ट्विस्टिंग अ क्वेश्चन अ बिट। ओके, से इंडियन सिटीजन, ओके, इंडियन सिटीजन है, इनकी आईटी कंपनी में इसका जॉब है, ओके, आईटी कंपनी में इसका जॉब है। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए या किसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए अमेरिका भेजा। ओके, सो कम ऑन, इन दिस particular case both conditions would be applicable or only first condition would be applicable? Come on, think, socho, only first condition will be applicable or both conditions will be applicable? Come on, think. Chalo, nobody? Okay, Gautam says both. No problem. Manisha says first. Mridul says first.
ओके, नो प्रॉब्लम. अब हम वर्ड्स क्या है यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला है, फॉर द पर्पजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. फॉर द पर्पजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने, अगर हम किसी असाइनमेंट के लिए से जाते हैं तो दैट इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. हमारी एम्प्लॉयमेंट तो इन इंडिया ही है ना. हमारी एम्प्लॉयमेंट तो इन इंडिया ही है, बराबर है. वी आर जस्ट गोइंग आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट. येस और नो? येस और नो? देयर इज अ वेरी 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 थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. ओके, अगर मेरा एम्प्लॉयर यहीं पे है इन इंडिया में, मेरी कंपनी इंडिया में ही है, मैं सिर्फ असाइनमेंट करने के लिए आउटसाइड इंडिया जा रही हूँ, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया. मैं एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया कब रहूंगी? जब आउटसाइड इंडिया मेरी कंपनी और वहां से मुझे जॉब का ऑफर आया है. हाँ या ना? हाँ या ना? सो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो बोथ बेसिक कंडीशंस would be applicable. Both basic conditions would be applicable. Clear everyone? Okay, do you want to draw this diagram in your books? Come on, fast, else we'll move ahead. Yes, come on, quickly do it. Quickly take this down, then we'll go to the next exception. Done, everyone? Ooh. Okay, let's move ahead to the next exception. सो अगर आप इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए जाते हो तो आपको बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट ने, आपके पास 6 महीने का टाइम है तैयारी करने के लिए. नेक्स्ट एक्सेप्शन सेज इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, ये से यहाँ पे उनका क्या कहना है? Just 1 minute. Yes. Okay. Now, this is the first condition. Yes, first exception. Let's go to the second exception. Say this is India. Okay, this is India. Okay, no problem. Okay, here in India you have this person who is an Indian citizen. Okay, now when we say India, area up to 12 nautical miles is territorial waters, correct? Area up to 200 nautical miles is what EEZ for the purposes of natural oil and natural gas and oil purposes, right? Further, this particular area which is beyond 200 nautical miles is known as the high seas. Right? So when we speak of India, my dear students, do we speak about only landmass or even the waters? Even these particular waters are included as a part of India.
No problem. Okay, say this particular person, this particular person has been yes. Now, say my dear students, this particular person has been included as a crew member. What is crew member? Crew member मतलब ये जो ships होती है ना, ये जो ships होती है, correct? Say he has been hired on this ship. ओके, ऑन दिस शिप. अब मैं जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट हैपेंस, उनका क्या कहना है, दिस पर्टिकुलर शिप शुड बी इंडियन शिप. इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन और आपको फॉरेन शिप में अगर क्रू मेंबर मिला है तो विल यू गेट दिस बेनिफिट? नो. बट इफ यू आर अ इंडियन सिटीजन एंड यू हैव बीन व्हाट, आप इंडियन शिप पे आए हो, ओके, आपको इंडियन शिप पे क्रू मेंबर बनाया गया है, तो आपको ये बेनिफिट अवेलेबल है. नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बेनिफिट क्यों दिया गया. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस पर्टिकुलर शिप यू नो, जैसे अभी वो सुएज कनाल का आपने पढ़ा क्या? एनीबडी रेड द वेंट थ्रू कि सुएज कनाल में कैसे वो बोट अटक गई थी सुएज कनाल में, उन्होंने क्या क्या रेस्क्यू प्रोसीजर्स किए. जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. पुल आउट टाइम फ्रॉम दिस. I don't want to use any slang words, but do not waste your time behind this social media. It is toxic. It is toxic, my dear students, and it is of no use. It is of no use. दो बार कमर हिला दिया टिकटॉक पे, फेसबुक पे, और 4 लोगों ने ताली मार दी. That is not your future. बाद में ये 4 लोग ही आप पे हंस के चले जाएंगे, right? But your knowledge, attainment of knowledge is very, very, very important. ओके, दिस इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम ऑफ योर लाइफ. ये टाइम आपको कि आप घर बैठो, पैसा मत कमाओ, घर बैठ के एसी में पढ़ाई करो. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, और ये अभी मिलेगा आपको, जिंदगी में कभी वापस ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. नेवर नेवर. ओके, यस. तो क्या होता है अब ये शिप, ओके, दिस शिप डज व्हाट, कभी इस शिप को यहाँ पे आना पड़ता है, फिर यहाँ पे आना पड़ता है, राइट, फिर यहाँ पे आना पड़ता है, राइट. तो आप मुझे एक बात बताओ, नाउ टेल मी, कॉमन सेंस से मुझे एक बात बताओ, फिर व्हाट हैपेंस, क्या कैन अ शिप कंटिन्यूअसली ट्रैवल विदाउट ब्रेक्स? चलो बताओ मुझे. सी, अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई एम आस्किंग यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे कुछ काम है वो खत्म किया, राइट, फिर यहाँ पे कुछ काम है वो खत्म किया, राइट, फिर यहाँ पे कस्टम स्पॉट पे आए, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी वो खत्म करी, राइट, फिर यहाँ पे एक दूसरा कस्टम स्पॉट है, वहाँ पे खत्म किया काम, फिर यहाँ से लेके फिर वापस हाई सीज में चली गई. Understanding? So this particular crew member who is on this Indian ship has to hop from one places to another, और वो continuously, कोई भी ship continuously travel नहीं कर सकती. it has its own limitation. उसको एक time limit होता है, right, during day, during night, उनका भी कुछ restriction होता है from traversing from one place to another. Okay, फिर अगर इंडिया में, अगर यहाँ पे आई, अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पे आई तो वो इंडिया में आई, अगर यहाँ पे आई इंडिया में आई, राइट, फिर अगर यहाँ पे आया इंडिया में आई, यहाँ पे आया इंडिया में आया, मतलब उस शिप पे जो भी क्रू मेंबर्स होंगे अगर यहाँ पे रुके तो उनको क्या हो जाएगा, उनके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर अगर मैं दोनों कंडीशन अप्लाई करती हूँ तो पहला कंडीशन तो 6 महीने बोलता है और दूसरा कंडीशन तो 2 महीने बोलता है, राइट. दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, 2 महीने की बात बोलता है, राइट. 60 days इज अप्रोक्सीमेटली 2 months. यस और नो, तो 2 महीने तो देखते देखते ही हो जाएगा, राइट. इससे 2 वोयाज किया, यहाँ पे 2 दिन रुके, 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 तो यहीं पे तो 8 दिन हो गए, राइट. नेक्स्ट वोयाज किया, वापस 10 दिन हो गया, राइट. नेक्स्ट वोयाज किया, वापस हो गया, राइट. सो दिस 2 months टाइम इज एब्सोल्युटली इनजस्टिस फॉर दीज क्रू मेंबर्स, राइट, बिकॉज प्रैक्टिकली उनका काम ऐसा है कि उनको क्या होता है, दे हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर हॉल्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. बराबर है. तो व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट सेज, इनकम टैक्स एक्ट सेज कि अगर आप इंडियन शिप में हो, अगर आप इंडियन शिप पे हो और अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर किसी इंडियन सिटीजन को इंडियन शिप पे, अंडरस्टैंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी इंडियन शिप पे इंडियन सिटीजन को अगर आप क्रू मेंबर हो और अगर आप ऐसा यू आर अ पार्ट ऑफ अ क्रू मेंबर, तो क्या होता है ना, आपका शिप कंटिन्यूसली ट्रैवर्स करता है,
right? In that case only first condition would be applicable. Okay, I'll write it here. Only first condition is applicable. ओनली फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल. मतलब क्या अगर ये इंडियन शिप है बट अगर यहाँ पे एक फॉरेन सिटीजन है और इस फॉरेन सिटीजन अगर ये इंडियन शिप पे है और ये इंडियन शिप अगर इंडिया में आती है, ओके, इंडिया में ट्रैवर्स करती है यहाँ पे और यहाँ पे, तो बताओ इस फॉरेन सिटीजन को वन बेसिक कंडीशन अप्लाई होगा कि बोथ द बेसिक कंडीशंस वुड बी एप्लीकेबल. कम ऑन, both basic conditions would be applicable. Okay, so यहाँ पे इसको both conditions would be applicable. Clear everyone? Clear everyone? Okay, अब मैं जो आगे explain करने जा रही हूँ वो इससे भी ज़्यादा important है. Okay, so now what happens is when this particular Indian citizen joins the Indian ship, that is known as the date of joining, and the date जब वो उसका voyage complete होता है, that is known as date of signing off. डेट ऑफ साइनिंग ऑफ. तो क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट, क्या कहता है, हम क्या करेंगे, अगर आप बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द क्रू मेंबर, अगर उसको यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, विल मेक अ जॉब सिंपल. वी विल मेक हिज जॉब सिंपल. हम इसको क्या बोलेंगे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब तो क्रू मेंबर बना वहाँ से लेके डेट ऑफ साइनिंग ऑफ तक, मतलब तेरा वॉयज कंप्लीट होने तक, साइन ऑफ करने तक. ओके, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो तेरा टाइम पीरियड है, इसको हम ट्रीट करेंगे डीम्ड आउटसाइड इंडिया. क्या ट्रीट करेंगे, वी शैल बी ट्रीटिंग इट एज यू आर नॉट इन इंडिया बट रादर यू आर आउटसाइड इंडिया. ओके, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, आउटसाइड इंडिया. तो इस इंडियन सिटीजन का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट, वी आर फाइंडिंग आउट इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर विच पीवाई 2021. बराबर है ना. इस पीवाई में कितने दिन हैं, 365 डेज है. राइट. तो इस पीवाई में जब भी उसने ज्वाइनिंग किया है उस दिन से लेके जब तक उसने साइनिंग ऑफ किया है वहाँ तक, इस टाइम पीरियड को हम क्या ट्रीट करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज टाइम आउटसाइड इंडिया. ओके, और फिर जो दिन बचेंगे दीज डेज वुड बी ट्रीटेड. इस डेज को क्या करो, कंपेयर इट विद फर्स्ट कंडीशन. मतलब क्या, these days if they are more than or equal to 182 days then you become a resident, else नहीं है then you become a non-resident. Clear everyone? Do you understand? Everyone, do you understand? Do you understand? Do you want to take it? Karan wants me to repeat it. Okay, no problem. इनका कहना है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडियन शिप पे क्रू मेंबर बनता है, ओके, तो इसको हम फायदा देंगे, बेनिफिट क्या देंगे कि इसको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगा, दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे. ओके, तो अब फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगा तो किस प्रकार होगा एप्लीकेबल, वो भी तो समझना जरूरी है. ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगा, नो प्रॉब्लम. एग्जाम में हमको डेट्स दे दिए तो हम कहाँ से कहाँ तक कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है. क्या होगा, यू हैव टू चेक PY 2021 में कितने दिन है, 365 डेज है. हमको देखना है कि वो क्रू मेंबर में ज्वाइनिंग उसने कब किया और उसका काम कब खत्म हुआ, दैट इज साइनिंग ऑफ पीरियड. मतलब इफ ही इज कमिंग टू इंडिया इवन एज अ क्रू मेंबर तो वी विल बी नॉट काउंटिंग इट एज ए स्टे इन इंडिया. क्यों, क्योंकि वो काम के लिए आया है, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है कि अगर शिप में अगर उस विशाखापट्टनम पोर्ट पे कुछ काम रहा, अगर मुंबई पोर्ट पे कुछ काम रहा कस्टम्स के, तो उसको आना पड़ेगा और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका काम उसको करना पड़ेगा. राइट, देयर ही डज नॉट हैव एन ऑप्शन. राइट, तो वो इंडिया में आ रहा है क्योंकि उसका काम है इंडिया में आना एज अ पार्ट ऑफ दैट शिप. तो फिर हम उसका क्या करेंगे, स्टे इन इंडिया नहीं कंसिडर करेंगे. मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू डेट ऑफ साइनिंग ऑफ विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड आउटसाइड इंडिया. ओके, सो इन दैट केस 365 डेज में से वो दिन हम लोग हटा देंगे उस पर. फिर दीज आर व्हाट, दीज डेज आर नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट स्टे इन इंडिया. दीज डेज आर नथिंग बट स्टे इन इंडिया. बराबर है ना. अब इसको कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट कंडीशन से. फर्स्ट कंडीशन से. अगर ये 182 डेज या उससे ज्यादा होगा देन वो रेसिडेंट, अगर नहीं तो वो नॉन रेसिडेंट. क्लियर कारण, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. कम ऑन, यस और नो. यस, आपको ये लिख के लेना है. डू यू वांट टू टेक इट डाउन? फटाफट. डू यू वांट टू टेक इट डाउन?
No? Shall I go ahead then? नहीं लेना? Okay, no problem. Oh, you want to take it down? Okay. Chalo, take it down. Fast. Are you enjoying the session? Interesting है ना? यस अनुष्का, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करेंगे. पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. होमवर्क के लिए दूंगी जो आपको होमवर्क में सॉल्व करके लाना है. Come on fast so that we can go ahead. Done everyone? ओके यस ओके. सो फर्स्ट एक्सेप्शन हमने क्या देखा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो तो जिस साल आप जाओगे राइट उस साल में आपको 182 डेज और मोर का कंडीशन एप्लीकेबल होगा. अगर आप इंडियन शिप में इंडियन क्रू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे ओके डेट ऑफ जितना जो पर्पस काम के लिए है डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू डेट ऑफ साइन ऑफ दैट इज आउटसाइड इंडिया. बाकी के दिन विल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया. उसको हम कंपेयर करेंगे 182 डेज और मोर से. ओके यस. अब थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन इसमें छोटा सा चेंज है. दिस इज ए एंड दिस इज बी. ये थर्ड कंडीशन के दो पार्ट्स हैं. यस दिस इज ए एंड दिस इज बी. वेरी 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 इंटरेस्टिंग. ओके लेटेस्ट अमेंडमेंट है. फुल फोकस होना चाहिए आपका जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो क्या कहना है उनका. इंडियन सिटीजन or a person of Indian origin engaged outside India in any employment, self-employment, business, profession comes on a visit to India during a previous year. मतलब क्या? There is an Indian citizen.
Say there is an Indian citizen or person of Indian origin. Now what is an Indian citizen? Who is a person of Indian origin? वो समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो. That if a person, Indian citizen or person of Indian origin. मतलब मेरा कहना क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, do Indians do not go outside India to settle? क्या इंडियंस आउटसाइड इंडिया जाते हैं क्या सेटल होने के लिए? बिल्कुल जाते हैं. हमें तो कितने सारे इंडियंस पता है जो अब इंडियन छोड़ के आउटसाइड इंडिया सेटल होते हैं. तो क्या होता है, ये लोग इंडियंस जो होते हैं वो आउटसाइड इंडिया जाके सेटल होते हैं, राइट, बट दे हैव सम कनेक्शन टू इंडिया. मतलब उनका प्रॉपर्टी होता है, उनका पुराना घर होता है, या उनका पुराना बिजनेस होता है. जैसे कि मैंने बोला मिस्टर एक्स मिसेस एक्स, ओके, उनका यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का पुराना प्रैक्टिस है. करेक्ट everyone. So they have their properties in India, they have their businesses in India, they have professions in India also. ओके वो चाहे इंडिया से बाहर गए हैं किसी भी पर्पसेस के लिए क्यों ना हो, एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए हो, कि सेल्फ पर्सनल पर्पसेस के लिए हो, या किसी बिजनेस पर्पसेस के लिए हो, प्रोफेशन पर्पसेस के लिए हो, पर अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब क्या होता है, उनका कोई पुराना घर इंडिया में होता है, उनका कोई पुराना प्रॉपर्टी इंडिया में होता है, और इस प्रॉपर्टी से भी उनको इनकम आता है. बराबर है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दीज पीपल कम टू इंडिया, कम टू विजिट इंडिया. करेक्ट, बराबर है. दे कम टू विजिट इंडिया. ओके, नाउ व्हेन दे कम टू विजिट इंडिया, माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, वो लोग इंडिया में आते ज़रूर है, ओके, बट अब उनको पता है कि अगर हम इंडिया में आए और हमने कंडीशंस फुलफिल कर दिए 182 डेज और मोर, या सेकेंड कंडीशन क्या है 60 डेज इन द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर और 365 डेज और मोर इन द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स. अगर हमने ये कंडीशंस फुलफिल कर दिए तो हम क्या हो जाएंगे, हम रेसिडेंट हो जाएंगे. और अगर हम रेसिडेंट हो गए तो हम आउटसाइड इंडिया भी जो इनकम अर्न करते हैं दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. बराबर है ना. तो वो क्या होता है, वो कुछ आइडिया करते हैं. ओके, फिर वो कुछ आइडिया करते हैं और आइडिया करके देखते हैं कि उनका कंडीशंस क्या होना चाहिए. कंडीशंस शुड नॉट बी फुलफिल्ड. अब इनको क्या है, सी लिसन टू मी, इनको क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इनके लिए क्या है, बिकॉज दे हैव देयर अफिलिएशन टू इंडिया, बिकॉज दे हैव देयर कनेक्शन टू इंडिया, तो इनको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है. इनको सिर्फ अब तक क्या था, फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल था ऑफ 182 डेज. मतलब वो लोग क्या करेंगे टू नॉट बिकम रेसिडेंट इन इंडिया, क्या करेंगे, 182 डेज नहीं रुकेंगे, 181 डेज रुकेंगे और फिर 180 डेज रुकेंगे और इंडिया के बाहर चले जाएंगे. मतलब अपने आप वो रेसिडेंट नहीं हुए. अगर वो रेसिडेंट नहीं हुए तो जो इनकम वो बाहर अर्न कर रहे हैं वो टैक्सेबल इन इंडिया नहीं रहेगा. राइट. तो अब क्या होता था ना, लोग क्या करते थे, आते थे इंडिया में, ओके, इंडिया में आओ, अपना 181 डेज रुको ताकि आप रेसिडेंट नहीं हो. ओके, 181 डेज रुक के आप चले जाओ इंडिया से बाहर. और जब आप इंडिया से बाहर चले जाओगे, ओके, जब आप इंडिया से बाहर चले जाओगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इंडिया से बाहर आप चले गए तो आपका इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा. सिर्फ उतना ही इनकम टैक्सेबल होगा जो इंडिया से रिलेटेड है. बराबर है ना. So what is happening is people who are misusing this particular condition, this particular benefit which was given to people, Indian citizens and to people with Indian origin. Okay, तो इसमें एक मेजर अमेंडमेंट लाया गया. तो मेजर अमेंडमेंट में क्या बताया गया है, से दिस इज इंडिया. ओके, दिस इज इंडिया. ओके, इफ एनी इंडियन सिटीजन or any person of Indian origin, okay, this particular person, say one minute, just 1 minute. Okay, say there's this one particular person, okay, who is what, he is outside India. Okay, he is outside India. Okay, now if this particular person is what, say Indian citizen or person of Indian origin, in that case, in these both cases what is happening is only first condition is applicable, right? But if he is any other person, in that case he had these two basic conditions applicable, right? He has these two basic conditions applicable. इसलिए इसको कोई रिलैक्सेशन नहीं था, इसलिए this amendment is not applicable to this, but this amendment is applicable only to Indian citizen और person of Indian origin जिनको ये बेनिफिट दिया गया था, 6 महीने का बेनिफिट दिया गया था.
ओके वो लोग क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू कम टू इंडिया एंड स्टे फॉर 181 डेज, कम टू इंडिया स्टे फॉर 181 डेज, और फिर क्या करते थे, नॉट पे टैक्स इन इंडिया ऑन ग्लोबल इनकम। ओके तो यहाँ पे एक मेजर अमेंडमेंट क्या लाया गया, वो मेजर अमेंडमेंट ये लाया गया कि I'll write here, say this is India, say this is India, okay, and this is a person who is outside India, and this particular person, if he is an Indian citizen or person of Indian origin, understand my dear students, this he is a Indian citizen or he is a person of Indian origin, and this particular person visits India, and write it here, yes, this particular person visits India, ओके बिकॉज उसका इंडिया में प्रॉपर्टी है, कुछ काम है, फैमिली है, पुराना मकान है, पुराना राजवाड़ा है, राइट, किसी वजह से इफ़ ही इज़ कमिंग टू इंडिया, ओके इफ़ ही इज़ कमिंग टू इंडिया, तो चेक करो इंडिया में उसका इनकम, इंडिया में उसका इनकम कितना है, ओके उसका इंडिया में इनकम कितना है। आई नॉट राइट द वर्ड इंडियन इनकम बिकॉज इंडियन इनकम इज डिफरेंट, आई जस्ट राइट हियर ओके, एक मिनट ना बच्चों, यस आई राइट हियर कि जब वो इंडिया में आया तो चेक करो उसका इनकम कितना है। अगर वो इंडिया में आया और इंडिया में उसने इनकम अर्न किया मोर देन 15 lakhs, माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर वो इंडिया में आया और इंडिया में अगर उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ओके 15 लाख से ज़्यादा है, इन दैट केस द मेजर अमेंडमेंट इज इन दिस केस what would be the conditions applicable is condition 1 as it is कि more than or equal to 182 days, एंड कंडीशन 2 में उनको क्या कहा गया, कंडीशन में 2 में कहा गया कि कंडीशन 2 में कहा गया कि प्रीवियस ईयर 2021 में हमारा हमको व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, इन द पर्टिकुलर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 60 डेज, इस 60 डेज को रिप्लेस कर दिया गया बाय 120 डेज, इस 60 डेज को रिप्लेस कर दिया गया 120 डेज, एंड इन प्रीवियस 4 PYs 365 डेज और मोर, ये कंडीशन दिया गया, ओके दिस कंडीशन। और अगर किसी भी वजह से उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, अप टू 15 lakhs उसका इनकम है, सी अंडरस्टैंड, इफ इनकम हियर द इनकम जो इसने अर्न किया है इट इज अप टू 15 lakhs, या नो इनकम इज अर्नड इन इंडिया, या नो इनकम इज अर्नड इन इंडिया, इन दैट केस only first basic condition would be applicable, that is 182 days or more. This is a major amendment. Do you understand? Do you understand, my dear students? Do you want me to repeat it once again? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ओके एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। वी आर सीइंग व्हाट, वी आर सीइंग द बेसिक कंडीशंस इन केस ऑफ एन, we are seeing basic conditions in case of whom, in case of an individual क्या residential status हम लोग compute कर रहे हैं under section 6(1), okay under section 6(1) what is being told, सेक्शन 6(1) क्या कहता है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल में भी है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस कितने हैं, 2, जस्ट 1 मिनट, यस बेसिक कंडीशंस कितने हैं, 2 बेसिक कंडीशंस। व्हाट आर द 2 बेसिक कंडीशंस, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेज कि इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, दैट इज अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021 में आप इंडिया में होने चाहिए फॉर 182 डेज और मोर, एंड सेकंड बेसिक कंडीशन इज PY 2021 में 60 दिन और उसके पिछले 4 PY में 365 डेज और मोर, राइट, एनी वन और बोथ कंडीशंस फुलफिल देन यू बिकम अ रेसिडेंट, बोथ कंडीशंस फुलफिल नहीं किए तो यू आर अ नॉन रेसिडेंट, यस और नो, गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स। अब आगे हमने क्या देखा कि देयर आर एक्सेप्शंस इन केसेस वेयर ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज एप्लीकेबल, सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है, मतलब विच आर द केसेस इन विच ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज एप्लीकेबल। द फर्स्ट इज अगर कोई इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए, इन दैट केस ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन विल बी एप्लीकेबल इन द ईयर, जिस साल वो इंडिया छोड़ के जा रहा है ना, उस साल में भी तो देखना पड़ेगा, बराबर है ना, उस साल में भी तो देखना पड़ेगा कि वो इंडिया में कितने दिन था, तो वहां पे 182 डेज और मोर। अगर कोई इंडियन सिटीजन क्या हो रहा है,
इंडियन शिप पे क्रू मेंबर बन के जा रहा है, राइट, इन दैट पर्टिकुलर केस माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसको क्या बोला गया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू डेट ऑफ साइनिंग ऑफ हम अज्यूम करेंगे और वे नॉट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो पूरे साल में देखेंगे कि आप आउटसाइड इंडिया कितने दिन थे, बाकी बचे हुए दिन विल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया, और फिर उसको कंपेयर करेंगे हम 182 डेज और मोर से। सेकेंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। ओके, फिर पहले का अमेंडमेंट के पहले सिनारियो क्या था, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया में आते थे, इंडिया में आएंगे ही ना, बराबर है, बिकॉज दे आर एन अफिलिएशन विद इंडिया, दे आर अ कनेक्शन विद इंडिया, राइट। तो वो इंडिया में अगर विजिट करते थे तो उनके लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल था 182 डेज और मोर का। बट अब यहाँ पे मेजर अमेंडमेंट लाया गया कि इफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आते हैं और इंडिया आने के बाद अगर वो इनकम अर्न करते हैं और उनका इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उनको दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ एक छोटा सा चेंज ये है कि सेकेंड कंडीशन में 60 डेज की जगह पे 120 डेज वुड बी एप्लीकेबल। और अगर उनका इनकम 15 लाख से कम है या इंडियन में इनकम नहीं है, जो भी इनकम है वो फॉरेन सोर्सेस से है, फॉरेन इनकम है, ओके, नो इनकम यहां पे लिखो इन इंडिया, दैट इज फॉरेन इनकम, दैट इज फॉरेन इनकम, तो उनको पुराना प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब वो पुराने एक्सेप्शन में कवर्ड हो जाएंगे, तो उनको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन वुड बी एप्लीकेबल ऑफ 182 डेज और मोर। क्लियर? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? आई एम एक्सपेक्टिंग सर्टेन रिप्लाईज फ्रॉम यू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस, ओके, डू यू वांट टू टेक इट डाउन? I would tell you that please take this down. ये मेजर अमेंडमेंट है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आएंगे, ओके, यस। चलो ये लिख के ले लो एक बार, फिर आई विल गिव यू सर्टन क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। कम ऑन फास्ट, ये लिख लो ऐसे, जस्ट टेक इट डाउन। दिस वाज द सिनेरियो, एक मिनट, दिस ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, से दिस इज एन अमेंडमेंट, ओके। इसके ऊपर जो है वो बिफोर अमेंडमेंट और उसके बाद का सिनेरियो है आफ्टर अमेंडमेंट, ओके, यस, कम ऑन क्विकली टेक दिस डाउन।
Done? Done, everyone? Okay. Yes. Let's go ahead. सो अब तक हमने क्या देखा? बेसिक कंडीशंस, उनके एक्सेप्शंस और मेजर अमेंडमेंट. ओके, यस. अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के लिए देना चाहती हूँ. राइट इट डाउन हियर. यस, तो चलो टेक इट डाउन. यस, तो पूरा खेल बेसिक कंडीशंस का है और बेसिक कंडीशंस डिपेंड अपॉन द स्टे इन इंडिया. बेसिक कंडीशंस किस पे डिपेंड करते हैं? अपॉन स्टे इन इंडिया. ओके, तो अब हम जब स्टे इन इंडिया कैलकुलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारे दिमाग में ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम जब दिन काउंट करेंगे मैम, तो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? राइट, मतलब अगर इफ अ पर्टिकुलर पर्सन कम्स टू इंडिया एंड देन लीव्स इंडिया, तो हम कौन से दिन काउंट करेंगे? सो डेट ऑफ कमिंग टू इंडिया एंड डेट ऑफ लिविंग फ्रॉम इंडिया, ये दोनों दिन भी काउंट होंगे एज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया. ओके, इन केस ऑफ शिप क्रू, इन केस ऑफ मेंबर ऑफ शिप क्रू, जैसे कि हमने सेकंड एक्सेप्शन देखा, उसमें हमने क्या बोला है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके डेट ऑफ साइनिंग ऑफ तक, मतलब वो दोनों दिन यहाँ पे डेट ऑफ कमिंग टू इंडिया एंड लिविंग इंडिया विल नॉट बी कंसिडर, क्योंकि वहां पे उन्होंने एक्सप्रेसली बोला है ना कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, वहां से वहां तक आउटसाइड इंडिया, मतलब वो दोनों दिन भी हम इन इंडिया काउंट नहीं करेंगे. ओके, इन ऑल अदर केसेस पर्सन कमिंग टू इंडिया एंड पर्सन लिविंग इंडिया, वो दोनों भी दिन काउंट हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स टेक, आई विल गिव यू सम होमवर्क. आई वांट यू टू डू इट ऑन योर ओन. ओके, सेम PY 2021 में फॉर 70 days. देन in PY 1920, okay, say Mr. X was for 100 days. Okay, then in PY 1819, say 150 days. Simultaneously आप मेरे साथ लिख के ले लो. Okay, PY 1718 में say he was in India for 80 days, and PY 1617 में say Mr. X was for 55 days. Okay, is it okay if I dictate the further questions to you, because my system is exiting some certain current. Okay, तो मैं आगे के सारे questions आपको dictate करने वाली हूँ. इतना ये लिख के ले लिया. Determine residential status of X. Determine residential status of X. हो गया. Next question dictate करो. Take down the next question. Following are the number of days. Following are the number of days for which Mr. X was in India. Following are the number of days for which Mr. X was in India. PY 2021, 182 days. PY 1920, 50 days. PY 1819, 100 days. PY 1718, 30 days. PY 1617, 50 days. Determine the residential status of Mr. X. Next question. Determine residential status of Mr. X. Determine residential status of Mr. X depending on his stay in India. Depending
on his stay in India? PY 2021, 100 days. PY 1920, 60 days. PY 1819, 100 days. PY 1617, 200 days. PY 1516, 50 days. And the last question. Find out residential status of Mr. X who left India for first time in AY 21-22. Who left India for the first time in AY 21-22. Make two columns. Left India, visited India. Make two columns. Left India, visited India. First option. Left India में लिखो 18/4/20, 18th April 20, 18th April 20. Visited India 25/11. ये लिख के दिखाती हूँ. I don't want you to make mistakes. 18/4/20. Came back to India on 25/11/20. Outside India 30/11/20. Came to India on 15/12/20. Then came to India on 10/1/20 and left India on 10th March 21. Clear everyone? Okay? I want you to solve all these problems for homework. Tomorrow's lecture again will be very important. See you at the same time. In case if there are any changes, I shall definitely let you know. Okay? Till then, take care and bye-bye. AY 21-22. We have to find out the residential status for AY 21-22.